So today is unit number 16, important theorems, in which we are going to study fundamental theorem of calculus, mean value theorem of integrals, and summary and solutions and answer. So let's start. Introduction part. In the previous two units, we have discussed how to evaluate the integral of a function as a limit of Riemann sum. पिछले दो यूनिट्स में हमने ये सीखा कि रीमन सम लेके उसकी लिमिट अगर निकाल देते हैं तो हमें इंटीग्रल मिल जाता है. Some important classes of the Riemann integrable function were also discussed. ठीक है, रीमन इंटीग्रेबल ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस का, कुछ फंक्शंस का रीमन इंटीग्रेशन भी डिस्कस किया गया. You have observed that the evaluation of n technique for evaluating the definite integral is in certain situation. हमने जो लास्ट यूनिट में पढ़ा था वो इनडेफिनेट मतलब डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ा था. इस यूनिट में हम कुछ और पावरफुल और इजियर टेक्निक फाइंड आउट करेंगे इवेलुएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल. दिस इज डन बाय इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन. You have already studied that if a function a b to r is such that f dash x is equal to fx for all x belongs to ab, then f is called antiderivative or primitive of f on ab. ठीक है, BMTC 131 कैलकुलस बुक में आपने ये कैलकुलस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ी थी. उसमें एफ डैश अगर ये है आपके पास, एफ डैश इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ डैश इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये आप सभी लोग अगर मान लीजिए इसको क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो I can write this also like this, fx is equal to integral of fx. तो ये जो कैपिटल F है that is called एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव. ये लिखा है यहाँ पर, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ f on AB. There you have learned that whenever f has antiderivative capital F, then all the functions f plus g are also antiderivative of f. However, the theory of Riemann integral is independent of the concept of the antiderivative. In this unit, we will explore the connection between the notion of derivative and integral. ठीक है, तो और क्या है, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि f एंटी डेरिवेटिव है, यानी कि f प्लस सी, जहाँ c कांस्टेंट है, ये भी आपका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप जानते हो f प्लस सी, f क्या है, यही वाला f है, ये f जो है इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स. तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो f डैश c का कांस्टेंट होने के कारण 0 इज इक्वल टू एफ एक्स. समझ में आ गई ना बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ गई आपको. तो f प्लस सी भी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स है, f इज इक्वल टू भी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स है, ये कैलकुलस में है. और यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखेंगे इस यूनिट में, ये बोला गया है. द रिलेशनशिप between the integral and derivative is established by an important theorem known as fundamental theorem of calculus, which is due to two famous mathematicians cum physicists, Sir Isaac Newton and Gottfried Wilhelm Leibniz. We first define the term primitive of a function, then we state and prove the
fundamental theorem of calculus. We shall state and prove two forms of this theorem. We explain how two theorems help to evaluate and definite integral to continuous function without using Riemann integral. इन शॉर्ट ये है कि दो ये मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे, इन्होंने ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का डेवलपमेंट किया और हम उसमें आगे ये पढ़ने वाले हैं। अब आगे यूनिट में हम ये पढ़ेंगे, एक कुछ ऐसी थ्योरम्स पढ़ेंगे जिसमें हम विदाउट यूजिंग रीमन इंटीग्रल इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। रीमन सम का यूज करे बगैर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। 16.2 में हम ये पढ़ेंगे। In section 16.3 we state and prove mean value theorem for the integral। ठीक है, important है mean value theorem। 16.4 में we shall explain a method of checking convergence and divergence of indefinite series by associating the terms of series to be to the values of function f, where f is monotonic decreasing integrable function defined over an interval AB. We introduce improper integral and state and prove an integral test for checking the convergence of the series. ठीक है। Objective: after studying this unit, you should be able to find primitive of a certain standard functions। आप primitive find out कर सकते हैं। State and prove and apply fundamental theorem of calculus for integral and explain its importance। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे और उसके बाद कोची इंटीग्रल टेस्ट लगाएंगे फॉर टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज। तो चलिए, सबसे पहला यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन पे आते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, then a function f is primitive, is called primitive of f on I if capital F is differentiable on I and f dash is equal to small f for all x belongs to I। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया था वही चीज, सेम चीज है। अगर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, f डैश इज इक्वल टू कैपिटल F डैश इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, देन कैपिटल F इज कॉल्ड प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल f। ये लिखा है बस। ठीक है, कौन से डेरिवेटिव वाला, वो प्रिमिटिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट फॉलोज द formulas of integral, that is fx is equal to x cube, then capital Fx will be x to the power 4 upon 4 is the primitive of f। ये लाइन आपको क्लियर हुई? कैपिटल F is equal to x to the power 4 upon 4 is the primitive of the function small f। नहीं हुई है तो जिनको नहीं हुई है वे मुझसे क्वेश्चन पूछिए। हम्म 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 आ गया, वेरी गुड। अब ये बताओ क्या समझ में नहीं आया किसी को? तो प्रिमिटिव कैसे निकालते हैं वो सबको समझ में आ गया। जब कोई नहीं बोल रहा है तो आई शुड एज्यूम दिस। ठीक है, लेट अस कंसीडर अनदर फंक्शन f फ्रॉम -1 to 1 to r defined by fx is equal to 0 when x is between -1 and 0 and fx is equal to 1 when x is between 0 and 1। This function is not
is not the derivative of the function f minus 1 to 1 r. Indeed, if f is the derivative of the function f, then by intermediate value property of derivative, f must have intermediate value property. But clearly the function small f given above does not have intermediate value property. Hence f cannot be derivative of any function f from this to this. However, small f is continuous, then f is the derivative of a function f minus 1 to 1 to r. This leads us following general theorem. However, if f is continuous, then we have the following theorem. इन्होंने ये कहा है, देखो यहाँ जो स्मॉल f दिया है वो दिया है 0 जब x माइनस 1 और 0 के बीच में है, और 1 व्हेन x 0 to 1 के बीच में, यानी कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, बताइए। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो फिर इसके बाद ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कैलकुलस का पार्ट है, वहां से वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं हो रही है, इसलिए इसका प्रिमिटिव फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। जबकि अगर f कंटिन्यूअस है तो उसका हम प्रिमिटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेनली दिस इज द मेन थ्योरम। व्हाट द थ्योरम इज सेइंग, let f is integrable on ab, small f is integrable on ab. Define a function capital F on ab as capital F is equal to integral a to x ft dt for all x belongs to ab. Then f is continuous on ab. Furthermore, if f is continuous at a point x naught of ab, then f is differentiable at a x naught. ठीक है, क्या इन्होंने कहा है, देखो मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो एक एक पढ़ते हैं। f इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, उन्होंने कहा f का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, f इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। इसका मतलब क्या है, ए बी में f का इंटीग्रेशन पॉसिबल। डिफाइन ए फंक्शन f सच दैट fx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ft dt। ठीक है, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया कैपिटल F कि f जब हमने स्मॉल f का इंटीग्रेशन किया, ठीक है, स्मॉल का f का इंटीग्रेशन किया तो उसकी रिजल्ट निकल के आया fx। ठीक है, t कैसे यहाँ पर लिख दिया, t f t, और यहाँ पर a to x। समझ में आ गई बात, ये हमने इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर दिया, जहां पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी के लिए। आप t ना मान के x मानना चाहें तो x भी मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। f इंटीग्रेबल है, स्मॉल f कैपिटल F, ये हमने डिफाइन कर दिया है इस तरीके से। देन इतना अगर आपके पास है, दो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है देन ये कहता है जो fx है इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है। और अगर ये कंटिन्यूअस है, इसके अलावा और क्या कहता है सेकंड स्टेटमेंट में, fx is continuous at x equal to x naught, then fx is also differentiable। अब कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल क्या होता है, उसके लिए आपको अक्टूबर में जो मेरी 15 क्लासेस ली थी उसका वीडियोस देखने होंगे। ठीक है, तो उसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन दी गई है, बारे में बताया गया। एंड और क्या बताया इसमें, f डैश x नॉट इज इक्वल टू है fx।
ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। सिर्फ स्टेटमेंट बताओ आपको समझ में आया या नहीं। नहीं आया तो कौन सा ऐसी लाइन है जो आपको समझ में नहीं आई, पूछो। जी, हमने यहाँ बी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो इंटीग्रल है वो ओवर द इंटरवल ए बी है। ठीक है। हेलो। हाँ, तो अगर मान लो अपर लिमिट आप बी ना देके कहते हो कि मैं उससे कम तक उसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो जैसे मैंने आपको दे दिया इंटरवल 2 to 5, तो आप कह रहे हो कि 2 से 5 लेना चाहिए, लेकिन एक ने कहा कि मुझे तो 2 से 5 करना ही नहीं है। आपने 2 से 5 इंटरवल दिया है, लेकिन मुझे तो 2 to 4 करना है। अब क्या करें? मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि उसने दे दिया f इज इंटीग्रेबल ऑन 2 to 5, और फिर उसने हमें डिफाइन कर दिया एफ एक्स इज इक्वल टू ए, ए हो गया आपका 2 to 4 एफ टी डी टी। इसको फाइंड आउट करो। तो क्या आप नहीं कर सकते? यहाँ x रखने से हमें ये फायदा हुआ कि यहाँ पर आप a से बड़ा और b तक का कुछ भी एलिमेंट यहाँ रख सकते हो। आपने यहाँ अगर b रखना है, दैट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ दिस थ्योरम, क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है? इंटरवल a to b को बिलोंग। समझ में आई बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? दोबारा से समझाता हूँ और अच्छा समझ में आएगा। देखो, यहाँ इस केस में जहाँ हमने यहाँ x लिखा और x बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी कह दिया, तो यहाँ x की वैल्यू a भी हो सकती है, तो इंटीग्रल a टू a भी हो सकता है। x की वैल्यू b भी हो सकती है, तो इंटीग्रल a टू b भी हो सकता है। x की वैल्यू a बाई a प्लस b कितना होगा? इन दोनों का आधा, मतलब कुछ भी। मान लो x इक्वल टू c, जहाँ c a और b के बीच में है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल a टू c भी हो सकता है। हो गए सारे केस। और आप जो कह रहे हो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के बारे में कह रहे हो। तो ये थ्योरम आपका पर्टिकुलर केस के साथ साथ और बहुत सारे केसेस को एक साथ रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और पूछिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 2, ये दूसरी थ्योरम है। ये क्या कहती है? f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज गिवन टू यू, स्मॉल f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, capital F is defined as same as previous one, integral a to x ft dt, where x belongs to interval a b, then f dash x is equal to fx। ठीक है, this is the first result which links the concept of integral and derivative. It says that if f is continuous, then there is a function f such that f dash x is equal to f। ठीक है, थ्योरम 2 अप्रोक्सीमेट सेम वही है जो थ्योरम 1 है थी। ठीक है, थ्योरम 1 और इसमें क्या फर्क है, बता सकता है कोई? थ्योरम 1 और थ्योरम 2, थ्योरम 1 ये लिखी है,
यहाँ भी वही एफ डैश, कैपिटल एफ डैश इज इक्वल टू स्मॉल एफ है, और यहाँ पर भी कैपिटल एफ डैश इज इक्वल टू स्मॉल एफ है। बताओ 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली एक तो है ही कि स्मॉल थ्योरम 2 में कंटिन्यूअस फंक्शन दे दिया, और थ्योरम 1 में एफ इज इंटीग्रेबल ये दे दिया। ठीक है, ये तो मेन है ही। इसके अलावा बताओ। सॉरी, दोबारा बोलिए। ओके, ये रही। ये लाइन चेक करो ना, ये वाली लाइन को चेक करो इस वाली लाइन से। राइट। हाँ, जनरल सभी पॉइंट के लिए है। वेरी गुड, ठीक है, आप सभी को भी समझ में आ गया। प्रोपोजिशन सेम वही चीज होती है, ये भी जो ऊपर आप दो थ्योरम है उसी से ये निकला है। लेट f1 and f2 be primitive of small f on the interval I, then there exists some constant c such that f2 is equal to f1x f1 plus c। समझ में आ गया? ऑब्वियसली क्या लिखा है इन्होंने, समझ में आया? नहीं, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। अरे पूछ लो, नहीं समझ में आया तो। देखो क्या कहा है इन्होंने, आ गया? चलो फिर अच्छी बात है। एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट वही है, क्योंकि इसमें वही चीज लिखी है कि F1 और F2 आप जैसे x का डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और x प्लस 2 का डिफ्रेंशिएट करोगे तो भी 1 आएगा। तो x और x प्लस 2 अगर प्रिमिटिव हैं 1 के, तो x और x प्लस 2 में ये होगा x, x और x प्लस 2 के बीच में ये आएगा कि वो एक कांस्टेंट के थ्रू ही डिफरेंस होगा। ठीक है, आई होप समझ गए, नहीं तो मुझसे आप क्वेश्चन। तो थ्योरम नंबर 3, एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये एक्सटेंशन है। इफ f is continuous at every point in the interval ab and f is any antiderivative of f on ab, then integral of a integral from a to b fx dx is equal to f of b minus f of a। जो अभी आप में से ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि x की जगह हमने b क्यों नहीं लिया, तो अब उसका ये पर्टिकुलर केस आ गया कि अगर हम x की जगह b फिक्स कर दें तब हमें उसको इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा जो उसका कैपिटल F है उसमें उसकी x की जगह b रख दो और x की जगह a रख के उनका डिफरेंस आप निकाल दोगे, दैट विल बी द योर आंसर। ठीक है, तो जब भी अभी एक बच्चे ने जो पूछा था वही, अगर इस x की जगह हम b फिक्स कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इंटीग्रल a टू b एफ टी डी टी विल बी कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। ये लिखा है। ठीक है, समझ में आई बात आपको?
नाउ रिमार्क वन, द assertion रिमार्क तो छोड़ो, इवेलुएट इंटीग्रल a to b x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रल करना है। वैसे तो आप लोग इजीली जानते हो एक्स स्क्वायर बाई टू, उसमें वैल्यू रख दो बी स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। जानते हो ना इजीली इंटीग्रेट करना सभी लोग। ठीक है, हाँ तो क्या लिखा है इसमें, एक सेकेंड मैं आपको समझाता हूँ लिख करके। इसमें लिखा है इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एक्स, ए टू बी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करते हो, एक्स स्क्वायर बाई टू ए टू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये थ्योरम की हमें कहाँ जरूरत पड़ी। थ्योरम की जरूरत ये पड़ी इस स्टेटमेंट के बाद आप ये कह दो, मैं तो ऐसे नहीं करता, मैं तो ये करूँगा ए स्क्वायर बाई टू माइनस बी स्क्वायर बाई टू। मैं तो नहीं इसको फॉलो करता, मैं तो इसको फॉलो करता हूँ। आप बताओ कौन से रूल, कौन से उससे कह रहे हो कि मुझे ये फॉलो करना है। समझ में आई बात। या किसी और बच्चे ने कह दिया मैं तो इस तरह नहीं करता, मैं तो ऐसे रखूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई टू। या एक और ने कह दिया मैं रखूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई टू। कुछ भी कह सकता है ना। समझ रहे हो ना पॉइंट को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप ये भी अपना सकते हो, ये भी अपना सकते हो, ये भी अपना सकते हो, फिर ये भी अपना सकते हो। तो लेकिन आपसे ये पढ़ाया गया है कि आपको ये ही अपनाना है। भाई ये क्यों अपनाना है, तो उसका आंसर ये है, ये इसलिए अपनाना है क्योंकि ऊपर जो हमारी थ्योरम दी हुई है ये वाली, इस थ्योरम की वजह से हमें ये अपनाना होगा। आ गई ये वाली थ्योरम नंबर 3 की वजह से। इसमें कहा है कि अपर लिमिट को आप पहले रखोगे, फिर माइनस करोगे, फिर लोअर लिमिट को रखोगे। तो इस थ्योरम की हेल्प से ही हम ये चीज करते हैं। समझ में आ गया पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए तो बस यही इसमें लिखा हुआ है। कैपिटल एफ है, एफ इन्होंने 1/2 एक्स स्क्वायर ले लिया, और फिर उसके बाद कैपिटल एफ डैश इज इक्वल टू स्मॉल एफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। एफ इज कंटिन्यूअस, द एफ बिलोंग्स टू रीमन इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एस इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर माइनस। ये आप जानते ही हो इजीली। ये हमने लेकिन उस थ्योरम से किया है। आप इसको एग्जाम में अगर आ गया तो आप इसको वैसे नहीं करोगे जैसे आप करते आए हो। आप इसको इस तरीके से करोगे, फंडामेंटल थ्योरम 2 का हमने यूज किया है। इस तरह लिख करके, यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम 2 एंड कैपिटल एफ इज इक्वल टू दिस, इस तरीके एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से लिख करके आप इसको एग्जाम में करेंगे। इवन एग्जाम में भी कहा जाएगा यूज फंडामेंटल थ्योरम टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल दिस। जैसे एग्जांपल नंबर 2 दिया गया, तो आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना है। तो बिल्कुल सेम वही है ये भी। फॉर क्वेश्चन स्मॉल एफ दे दिया 2 टू द पावर एक्स, कैपिटल एफ दे दिया टू, इसको वो कर लो आप, है ना। तो 2 टू द पावर एक्स अपॉन लॉग 2, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया 2 टू द पावर एक्स। बस फिर एफ ऑफ कैपिटल एफ एट 1 माइनस कैपिटल एफ एट 0 निकाल दो। समझ में आ गया पॉइंट या नहीं आया, या मैं करके दिखाऊं। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा है, इसमें ये कहा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला जो है वो क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये आपको फॉर्मूला। अब इस पे आते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 2 टू द पावर एक्स।
इंटीग्रल 0 to 1 टू द पावर x dx आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको कैपिटल F निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 0, b की वैल्यू हो गई 1, स्मॉल fx की वैल्यू हो गई 2 to the power x। ठीक है, ये हो गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है कैपिटल F की वैल्यू। कैपिटल F कैसे निकालोगे, बता सकता है कोई मुझे? कैपिटल Fx क्या होगा? किसको डिफ्रेंशिएट करूं? कैपिटल F क्या है? कैपिटल F को डिफ्रेंशिएट करके हमें 2 to the power x चाहिए, यानी 2 to the power x का क्या कर दो? नहीं समझे? थोड़ा सा टफ लग रहा है? सोचो, आप ही बताओ मुझे कैसे करोगे। आप किसने क्वेश्चन पूछा, नाम क्या है आपका? है ना योगेश, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसलिए नहीं कि आप आगे से क्वेश्चन ना पूछे। ज्यादातर टीचर्स क्वेश्चंस इस तरह लिए पूछते हैं कि आप आगे से क्वेश्चन ना पूछो, लेकिन मेरा मकसद ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर समझाने के लिए हूँ, आप समझने के लिए। तो सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सभी लोग किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछने में डरे नहीं, अपने क्वेश्चंस पूछते रहें। तो अब आप बताओ मुझे, जैसे मैं अगर आपको ये कहूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, स्मॉल एफ, आप कैपिटल एफ आपको निकालना है इस प्रकार से कि कैपिटल एफ को डिफ्रेंशिएट करने के बाद मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाए। बताओ क्या होगा, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? कैसे पता चलेगा? इस ये है, दोनों तरफ का इंटीग्रल कर दो। इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू x³/3, यही तो आएगा। वो यहाँ लिख दो। अब समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मैं इसे हटा देता हूँ। तो अब मैंने आपसे पूछा है, तो जा ही नहीं रहा, चलो छोड़ो, नहीं जा रहा तो ऐसे कर देते हैं। अब आपको कैपिटल एफ बनाना है इस प्रकार से कि कैपिटल एफ का डिफ्रेंशिएट करने पर हमें एफ एक्स मिल जाए इस वाले फॉर्म में। तो क्या करना है, जो स्मॉल एफ एक्स है उसका इंटीग्रल कर दो। इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा? 2 to the power x का इंटीग्रल याद है? ये होता है 2 to the power x log 2। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आप देखो यहाँ पर, हेयर, इस तरीके से एफ डैश करो, इसका डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 to the power x, जो वैल्यू है एफ एक्स। समझ में आ गया पॉइंट या नहीं आया? कैसे कैपिटल एफ निकालेंगे? ठीक है, तो अब कैपिटल एफ हमारा निकल गया। तो अब यहाँ हमारे पास क्या है? कैपिटल एफ एट 1 माइनस कैपिटल एफ एट 0 इज इक्वल टू 2 to the power 1 log 2 माइनस 2 to the power 0 log 2 इज इक्वल टू log 2 आपका कॉमन आ गया। 2 - 1 इज इक्वल टू 1/log 2। ये आपका आंसर आ गया। डाउट पूछिए। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग अच्छी तरीके से एक एक लाइन एक एक शब्द बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। कहीं भी कोई भी जरा सा भी डाउट आता है तो मुझसे पूछो, बट ये क्वेश्चन 100% हर बंदे को क्लियर होना है। समझ में आ गया सबको? चलिए, वेरी गुड।
तो बस आगे के एग्जाम्पल 3 आप खुद ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एक्सरसाइज। नाउ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम 3, let f is continuous, f is Riemann integrable, then there exists a function point zeta between a to b such that integral of f is equal to f of zeta into b minus a। ठीक है, समझ में आ गया? क्या है? f कंटिन्यूअस है, f सॉरी let f is continuous। अगर f continuous है, this is given to you, then you can say f is Riemann integrable। obviously आप जानते हो every continuous function is Riemann integrable। and और उसका इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल होगा a to b f is equal to b minus a f of जीटा। और जीटा क्या है? कोई भी एक बीच का पॉइंट है। ठीक है, थ्योरम्स हैं, ये इसके स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें याद रखना ही रखना पड़ेगा। Illustrate the theorem 3 for the function f to be defined fx is equal to x। ठीक है, देखो इन्होंने कहा है कि इस थ्योरम 3 को वेरीफाई करो। मैं पहले लिख करके आपको समझाता हूँ, क्योंकि लिखने से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है f इज कंटिन्यूअस, f इज रीमन इंटीग्रेबल, तब देन इसके अलावा उसने क्या कहा है? इंटीग्रल ऑफ a टू b, कंटिन्यूअस किस में? a टू b में, a टू b fx dx इज इक्वल टू f of जीटा इंटू b माइनस ए, वेयर जीटा किस में बिलोंग करता है? ए बी को बिलोंग करता है। ठीक है, ए बी का कोई बीच का पॉइंट है। समझ में आ गई थ्योरम? अब उसमें हमें वेरीफाई करना है नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया है, ये रहा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ए बी के लिए। ठीक है, इन्होंने हमें दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑन ए बी। तो ये कंटिन्यूअस तो है ही, आप जानते हो आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अब हमें वेरीफाई करना है कि ये थ्योरम सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो अगर ये थ्योरम सेटिस्फाई करता है तो क्या होना चाहिए? एफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आना चाहिए, एक तो b माइनस ए आना चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ठीक है, और एक एफ ऑफ जीटा आना चाहिए। एफ ऑफ जीटा मतलब कोई जीटा किसको बिलोंग करता है? जीटा बिलोंग्स करता है ए और बी का बीच का कोई पॉइंट। तो ठीक है, इसमें ऐसा कुछ आना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या है। a टू b एफ एक्स की वैल्यू रखी x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, a टू b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू b प्लस ए बाई टू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b माइनस ए। अब कंपेयर करो, b माइनस ए ये रहा, b माइनस ए ये रहा। अब आप मुझे ध्यान से बताओ, एफ ऑफ जीटा ये है, तो दैट मीन्स एफ ऑफ जीटा की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर एफ ऑफ जीटा इज इक्वल टू बी प्लस ए बाई टू। तो जीटा की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर? मुझे ये बता दो बस। जिसने ये बता दिया समझो उसको क्वेश्चन समझ में आ गया। नहीं बता पा रहे हो तो मतलब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फिर आप क्वेश्चन मुझसे पूछना कि कौन सी लाइन समझ में नहीं है। बताओ जीटा की वैल्यू क्या होगी? कौन सी लाइन की हेल्प लोगे?
ये लिखिए, इसकी हेल्प लोगे। बताओ। हम्म। नो। नो। अरे भाई, अब समझो, ये भी समझो। देखो, अगर मैं ये दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट, बिल्कुल सही, आपने सही बोला। और इसके बाद अगर मैं ये दे देता हूँ, इसके एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू, तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू है, ठीक है, या इसको इस तरह ले लो, एफ एफ टू इज इक्वल टू ईटा, ये है ईटा, ईटा ले लो, ईटा है, तो ईटा की वैल्यू क्या होगी, इस टू को इसमें रख दो यहाँ पर। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो इन दोनों में सेम है, तो जो यहाँ होगी वैल्यू वो यहाँ होगी, जो यहाँ होगी वो यहाँ होगी। तो आपके यहाँ पर जब ये है a प्लस बी बाई टू, और यहाँ जीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ इसके हिसाब से इसकी वैल्यू सेम ही तो होनी चाहिए, तो ये होगी a प्लस बी बाई टू। समझ में आई बात नहीं? और जी, और जीटा किस में पड़ रहा है, जीटा आपका इसमें पड़ रहा है, बीच में, क्योंकि ये इंटरवल ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, a प्लस बी बाई टू। यही हमारी थ्योरम थी, याद देखो इधर आ गया माउस, ये थ्योरम थी कि इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो जीटा जो निकल के आएगा वो इस इंटरवल में पड़ना चाहिए। वही हमने यहाँ दिखा दिया कि जीटा हमारा जो निकल के आया वो आया a प्लस बी बाई टू, और वो इस इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में पड़। जिनको समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन पूछो। आएंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। कुछ नहीं पूछ रहे हो तो आई एज्यूम आपको सब आ गया। बस यही था। इनफाइनाइट सीरीज रिविजिटेड। इनफाइनाइट सीरीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सीक्वेंस एंड सीरीज वाले में, उसमें बस एक छोटा सा टॉपिक इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया। क्या कहता है डेफिनेशन, a function f is integrable on ab for every b belongs greater than a, and limit b tends to infinity, integral a to b f exists either as real number or as plus minus infinity. We denote the limit by integral a to b, a to infinity f, and call it the improper integral of f over a to infinity. In case In case limit b tends to infinity, a b f is real number, we speak the improper integral a to infinity f as being convergent, otherwise divergent. ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एक इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अगर उसको इंटीग्रेट करने के बाद, देखो क्या कहा है, इन्होंने कहा है एक हमारे पास इंटीग्रल है a टू इन्फिनेटिव एफ एक्स डी एक्स, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहा जाता है। इसके लिए हम कैसे इसको करते हैं, लिमिट b टेंस टू इन्फिनेटिव a टू इन्फिनेटिव, सॉरी, a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करते हैं,
और सॉल्व करने के बाद अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो हम कह देते हैं इट इज कन्वर्जेंट, और अगर नहीं आती है, इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव आती है, तो हम बोलते हैं इसको डाइवर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या होते हैं वो आप जानते ही। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे भी दिया है, लिमिट ये रहा इंटीग्रल 1 to infinitive 1 upon x dx is a improper integral with integral 1 to infinitive 1 upon x dx is equal to infinitive। जब आप कैलकुलेट करेंगे कैसे, लिमिट b टेंस टू infinitive 0 1 2, यहाँ b आएगा, ये infinitive गलत लिखा है इस जगह, b आएगा, 1 upon x dx is equal to 1 upon x का क्या हो गया, log b आ जाएगा, b टेंस टू infinitive, और log infinitive is equal to infinitive। तो improper integral is divergent, where, समझे क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो मैं ही करके बताता हूँ। लिमिट 1 टू infinitive 1 upon x dx, आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, लिमिट b टेंस टू infinitive इंटीग्रल 1 to b 1 upon x dx, लिमिट b टेंस टू infinitive 1 अपॉन एक्स को हमने इंटीग्रेट किया तो ये log x आ गया 1 to b, तो लिमिट b टेंस टू infinitive log b माइनस log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, दिस विल बी लिमिट b टेंस टू infinitive log b। अब b की जगह आप इन्फिनेटिव रख दोगे तो log इन्फिनेटिव इज इक्वल टू इन्फिनेटिव, सो डाइवर्जेंट। ठीक है, नाउ अगर अब इसको करते हैं 1 टू infinitive 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू लिमिट b टेंस टू infinitive इंटीग्रल 1 to b 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू लिमिट b टू infinitive, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 to b is equal to limit b tends to infinitive माइनस 1 अपॉन b माइनस 1। अब b यहाँ पर आप इन्फिनेटिव रख दोगे b की जगह तो यह आ जाएगा 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो दैट मीन्स कन्वर्जेंट। क्लियर हो गया आप सबको, बस यही चीज यहाँ पर लिखी है। Cauchy integral test, let f be a real valued function with domain 1 to infinitive such that fx greater than 0 for all x greater than 1, x less than y implies fx greater than f of y, f is integrable for x greater than 1 such that fn is equal to un। तो fn is convergent if and only if integral of fx dx is convergent and series fn is divergent if and only if integral is divergent। इंटीग्रल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कब होते हैं वो आप समझ ही गए। तो इन्होंने जो fx हमारी सीरीज है ना, वो जैसे 1 अपॉन एक्स थी, अभी हमने इंटीग्रल किया 1 अपॉन एक्स, वो सीरीज के रूप में हम लिख सकते हैं उसे 1 अपॉन एन, समेशन 1 अपॉन एन समेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बना सकते हैं सीरीज समेशन 1 अपॉन एन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बना सकते हैं समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये डाइवर्जेंट हो गई, क्यों, क्योंकि हमने ये निकाला यहाँ पर, और ये कन्वर्जेंट हो गई, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ये निकाला। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। ठीक है, ये आगे के बस एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप ट्राई कर लेना, कंसेप्ट मेन वही है। तो आज के लिए यहीं तक, ये कोई आपके